ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرسبزی و شادابی نئے شہر تک محدود، پرانا شہر نظر انداز، بلدیہ کے جنرل باڈی اجلاس میں مجلسی کارپوریٹرز کی برہمی۔ شہر میں سڑکوں کی خستہ حالت پر کمشنر بلدیہ سے کارپوریٹرز کی جواب طلبی، کمشنر اجلاس کا بائیکاٹ کر کے روانہ، پیر کو دوبارہ اجلاس کی طلبی۔ تلنگانہ مسودہ بل نقائص اور خامیوں سے پر، ریاستی وزیر مانیکیا ورا پرساد کی توجہ دہانی۔ سرمایہ کاری کے لیے آندھرا پردیش موزوں مقام، وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کا دعویٰ۔ اور کرن کمار ریڈی کو چیف منسٹر کا عہدہ، پاگل کے ہاتھ میں پتھر کے مماثل، شنکر راؤ کا اظہار خیال۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کا جنرل باڈی اجلاس میئر محمد ماجد حسین کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مجلسی کارپوریٹرز نے کئی اہم عوامی مسائل پر بلدی حکام کو توجہ دلائی۔ مجلسی کارپوریٹرز کا کہنا تھا کہ سابق میں ساؤتھ زون کے پارکس کو خوبصورت بنانے کے لیے وعدے کیے گئے، لیکن اس پر عمل آوری نہیں ہوئی۔ کارپوریٹرز نے مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کے HMDA کے تحت پارکس کو GHMC کے حدود میں شامل کیا جائے۔ مجلسی کارپوریٹرز کا کہنا تھا کہ سرسبزی و شادابی نئے شہر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ پرانے شہر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مجلس بلدی پارٹی کے فلور لیڈر نذیر الدین نے آکوپنسی سرٹیفکیٹ کا مسئلہ اٹھایا، جبکہ رین بازار کے کارپوریٹر خواجہ بلال نے برتھ سرٹیفکیٹس میں ہو رہی تاخیر اور صداقت ناموں میں پائے جانے والی غلطیوں پر توجہ دلائی۔ کارپوریٹر سمد بن عبداد نے بھی عوامی مسائل بلدی حکام کے سامنے رکھے۔ سلیم بیگ نے ہاؤسنگ اسکیم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ JNNRUM کے تحت جو مکانات تعمیر کیے گئے تھے اس پر اب تک عمل آوری نہیں ہوئی ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے 2 سروے نمبر 82 اور 83 کی نشاندہی کروائی تھی اور غریب عوام میں مکانات تقسیم کرنے کے لیے نمائندگی کی تھی، لیکن بلدیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ آج تک تساہل کا شکار ہے۔ سلیم بیگ نے کہا کہ اس نمائندگی کے بعد ہی لینڈ گریبرز نے اکبر الدین اویسی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ JNNRUM اور RAY کے تحت بلدیہ کو اپنے طور پر اسکیمات تیار کرتے ہوئے غریب عوام میں تقسیم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بلاگوڑا اور اپوگڑے میں 888 مکانات کی تقسیم ہوئی تھی، لیکن آج تک 300 مکانات بھی مکمل نہیں ہوئے۔ بلدیہ کے جنرل باڈی اجلاس میں اس وقت عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی جب مجلس کے فلور لیڈر نذیر الدین نے سڑکوں کی خستہ حالت کا مسئلہ اٹھایا۔ دیگر اراکین بلدیہ بھی اس مسئلے پر جواب طلبی کر رہے تھے، جس پر ہنگامہ آرائی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بلدی عہدیداروں نے 2 ماہ میں سڑکوں کی درستگی کرنے کا تیقن دیا، جس پر مجلسی کارپوریٹرز نے کہا کہ برسوں سے یہی تیقن دیا جا رہا ہے، لیکن کام کچھ نہیں کیا جاتا۔ دیگر اراکین بلدیہ نے بھی اس مسئلے پر بلدی عہدیداروں کے رویے پر احتجاج کیا، جس پر کمشنر بلدیہ اپنے اسٹاف کے ہمراہ اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کمشنر کے رویے پر برہم تمام جماعتوں کے اراکین بلدیہ نے احتجاج کرتے ہوئے اور معذرت خواہی کا مطالبہ کیا۔ کاؤنسل کو کس بات سے گمراہ کر رہے ہیں کہ فلانی تاریخ تک کریں گے، یہ نہیں معلوم۔ دوسری بات، جیسا نذیر بھائی کے کوسچن کے اندر ایک سوال کیا گیا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ فرسٹ جو کام کسی کانٹریکٹر کو اگر الاٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کانٹریکٹر کام نہیں کرتا تو کیا GHMC اس کو پھر ری ٹینڈر کرے گی یا پھر سیکنڈ لوئسٹ کانٹریکٹر کو کام الاٹ کر کے امیڈیٹلی کام دے سکتے ہیں لوگ؟ 2 مہینے میں تو کمشنر صاحب کچھ کرے نہیں، آنے والے 2 مہینے میں الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے بعد تو دعوے سے کہتا ہوں کہ فون بھی نہیں اٹھائیں گے کسی ممبر کا فون نہیں اٹھائیں گے۔ سر، کاؤنسل کے اندر ایک نیا ریزولیشن، GHMC کے اندر ایک نیا انقلاب، ایک نیا قانون
पास करने के इख्तियारात हम सबको, जनरल बॉडी को है साहब, और हम सबसे ज्यादा आपको इसके ऊपर डिसीजन लेना है साहब। नहीं, ऐसा क्या हुआ साहब, क्या जीएचएमसी काउंसिल में जवाब नहीं देंगे ऑफिसर्स? व्हाट डिड आई हैव सेड? नथिंग ना सर। हाउ कैन द जीएचएमसी ऑफिसर कैन वॉक आउट? दे डोंट वांट टू गिव द आंसर टू द कंज्यूमर, they don't give the answer to the residents of the people of Hyderabad. They are running away from the job, sir. We did not have to use any word. Why they can walk out from the hall, sir? Shame, 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 shame. और आपके गाइडेंस और सपोर्ट से हुकूमत ने महकमे माल में 6000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने का फैसला किया है। वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने कहा कि वीआरओ के 1657 और वीआरए के 4305 जायदादों के तकर्रुरात के लिए 28 दिसंबर को एलामिया जारी किया जाएगा। 12 जनवरी फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख रहेगी और 13 जनवरी तक दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 19 जनवरी से 2 फरवरी की सुबह 9 बजे तक हॉल टिकट्स ऑनलाइन हासिल किए जा सकते हैं। 2 फरवरी की सुबह वीआरओ और दोपहर में वीआरए के इम्तिहानात 23 अजला में मुनक्किद किए जाएंगे और 20 फरवरी को नताइज का ऐलान होगा। 26 फरवरी को ज़िले कलेक्टर्स मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों के सदाकतनामों की जाँच करेंगे। इसके बाद मुलाजिमतें दी जाएंगी। वज़ीर माल ने बताया कि काबिलियत की बुनियाद पर शफाफ अंदाज में तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मज़कूरा इम्तिहान की फ़ीस 500 रुपये होगी और SC/ST तबके के लिए 200 रुपये फ़ीस होगी। माज़ूरीन को फ़ीस से मुस्तस्ना रखा गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इम्तिहान के पर्चे अंग्रेज़ी, तेलुगु और उर्दू ज़ुबान में होंगे और कहा कि रियासत की तक़सीम का मामला इन तकर्रुरात में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा क्योंकि ये ज़िलाई सतह पर होने वाले तकर्रुरात हैं। मुख्यमंत्री गारू गवर्नर गारू दादाపు 12,000 మందితో సభ డాక్టర్ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి స్టేడియంలోనే నిర్వహించడం జరుగుతుంది। అందులో వాళ్ళు ప్రసంగిస్తారు 11:30కు ఉదయం 11:30కు సోమవారం। దయచేసి అందరూ హాజరు కావాలని మనకి గర్వకారణం ఒక గొప్ప పరిపాలన దక్షుడిగా మరి ఈ దేశ రాష్ట్రపతిగా మంచి పేరు తెచ్చినటువంటి వారు ఈ తరానికి వారి ఆశయాలు చాలా అవసరం కాబట్టి అందరూ కూడా భాగస్వాములు అవుదాం। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि सरमाकारी के लिए आंध्र प्रदेश एक मौजूद मुकाम है। NIMSME की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में सनती शोबे के लिए बरक़ी कटौती नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ा, लेकिन आइंदा साल मौसम गर्मा में बरक़ी कटौती पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि 7000 मेगावाट बरक़ी पैदा करने की सलाहियत होने के बावजूद गैस की अदम दस्तयाबी से बरक़ी पैदावार में रुकावट पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि इलाकाई तहरीकों के बावजूद भी हुकूमत ने मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बेहतर हुक्मरानी का एवॉर्ड भी हासिल किया। उन्होंने एवॉर्ड हासिल होने को अपनी काबीना टीम और मुलाजमीन की मेहनत का नतीजा करार दिया। वज़ीर आला ने कहा कि आंध्र प्रदेश में रोज़गार के काफ़ी मौके दस्तयाब हैं और इसी को देखते हुए हुकूमत तालीम याफ्ता नौजवानों को उनकी काबिलियत के मुताबिक तरबियत देते हुए मुलाज़मतें फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 4,20,000 नौजवानों को तरबियत दी जा चुकी है। Having human resource is going to be one of the main advantages of coming to Andhra Pradesh. Had some problem in electricity, and especially the smaller units, we had some problems for the
small and medium units with electricity last year. It was a major problem. We had about 12 to 15% shortage of electricity last year. But I assure you, this summer there is not going to be electrical cut anywhere for industry. साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि वजीर आला को बेहतर हुक्मरानी का जो अवार्ड दिया गया है, इंडिया टुडे को उसकी वजाहत करनी होगी कि आखिर किस बुनियाद पर यह अवार्ड दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि वजीर आला के रवैये और तर्ज अमल से खुद उनके अफराद ख़ानदान नाला हैं। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी को वजीर आला का ओहदा मिलना पागल के हाथ में पत्थर देने के बराबर है। अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर होती तो कांग्रेस को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का मुंह देखना नहीं पड़ता। साबिक वजीर ने कहा कि सदर जमहूरिया के हालिया बयान के बाद सीमांध्रा कायदीन को तेलंगाना की तश्कील में ताउन करना चाहिए। 3 to 4% మధ్యన అంటే 2% ఓట్లు పడితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అక్కడ వచ్చేది. అంత టైట్ గా ఇదైంది. ఎన్ని సీట్లు వచ్చినా పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్ టోటల్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓట్స్ చూస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నది। रियासती वजीर डी मानिक्यवर प्रसाद ने कहा कि तेलंगाना मसवदा बिल में कई खामियां पाई जाती हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बिल के नकाइस को मुबाहस के दौरान उठाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद हलकों की हदबंदियों के दौरान SC/ST के हलकों में इजाफा किया जाना चाहिए और वो उसके लिए अलहदा करारदाद पेश करेंगे। डी मानिक्यवर प्रसाद ने स्पीकर के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स किए जाने और ऐवान में पेश आए वाक़यात पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल पर मुबाहस को शुरू करने या ना करने का फैसला 3 जनवरी को स्पीकर ही करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेसी हैं और किसी JC के तहत काम नहीं करेंगे। నేను సభ ముందు పెడతాను। నేను మీ ద్వారా నేను ప్రజలకు తెలియజేస్తాను। తప్పేం లేదు, అది వాళ్ళ అభిప్రాయం, అది సభ్యుల అభిప్రాయం అది। కానీ అట్ ది సేమ్ టైం పార్లమెంట్ నుంచి రాష్ట్రపతి నుంచి ఒక బిల్లు వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని సమగ్రంగా చర్చించడం కూడా అవసరం। ఆ చర్చించేటప్పుడు సమైక్యాంధ్ర కావాలనుకున్న వాళ్ళు సమైక్యాంధ్ర చెప్తారు, సమైక్యాంధ్ర కాకుండా ఇంకోటి కావాలి ఇంకోటి చెప్తారు। APNGOs के सदर अशोक बाबू ने कहा है कि रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ बिल के असम्बली में पेश होने पर तमाम जमातों के सीमांध्रा कायदीन को मुत्तहिद होकर उसकी मुखालिफत करनी चाहिए। APNGOs की जानिब से मुनक्किदा कुल जमात इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इजलास में यह फैसला किया गया कि ज़रूरत पड़ने पर सदर जमहूरिया से भी नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने बताया कि तमाम जमातों के कायदीन ने APNGOs की तहरीक की तायीद का यकीन दिलाया है। उन्होंने सीमांध्रा के तमाम अरकान असम्बली से मुतालबा किया कि वो रियासत की तकसीम के बिल की मुखालिफत करें। उन्होंने बताया कि आइंदा 2 दिनों में सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करते हुए सदर जमहूरिया से मुलाकात के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मौके पर तेलुगु देशम लीडर P. केशव ने कहा कि रियासत की तकसीम के बिल की मुखालिफत के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन को मुत्तहदा रियासत के लिए आगे आना चाहिए। रियासती वजीर शरजनात ने कहा कि इस तरह की सूरत हाल में सियासी सूरत हाल से बालातर होकर सीमांध्रा कायदीन को जिदोजहद करनी चाहिए। APNGOs के इजलास में 4 सियासी जमातों कांग्रेस, तेलुगु देशम, CPM और लोक सत्ता के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि YSR कांग्रेस पार्टी ने इजलास में शिरकत नहीं की। इस इजलास के पेश नज़र गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। YSR कांग्रेस पार्टी ने ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले पर वज़ीर आज़म से रियासत के कुल जमाती वफ्द की नुमाइंदगी को बेफैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी लीडर MV मैसूरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वफ्द को कोई वाज़ेह तयक़्क़ुन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो मशवरा दिया है वो कोई नया नहीं है। मैसूरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले पर मौसर नुमाइंदगी से खासिर रहे। उनका कहना था कि वज़ीर आला अवाम को हथेली में जन्नत दिखाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी लीडर N. जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म से कुल जमाती इजलास के वफ्द की मुलाकात के दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जानिबदाराना रोल अदा किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान तेलंगाना को हुआ है, लेकिन वज़ीर आला ने इस सिलसिले में किसी किस्म की नुमाइंदगी नहीं की, मगर वो ये दावा ज़रूर करते हैं कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में ही तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की नाइंसाफियों की वजह से ही अलहदा तेलंगाना का मुतालबा किया जा रहा है। अलहदा तेलंगाना रियासत बनते ही सुप्रीम कोर्ट में अलहदा SLP दाखिल की जाएगी।
बीजेपी लीडर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी तेलंगाना के मौक़िफ़ पर कायम है और वो ऐवान असम्बली में सीमांध्रा के अवाम के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के बारे में भी बात करेगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने गड्डियानरम के मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा किया। सरकारी अहदेदारों और मुकामी जिम्मेदारों के हमरा उन्होंने इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुकामी अफराद ने पानी की किल्लत की शिकायत की, जिसे दूर करने के लिए हिदायत दी गई। रुकने असम्बली ने त्रिवेणी कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल के तामीरी काम का मुआयना किया और मुकामी पार्क का भी दौरा करते हुए वहां पैथवे की तामीर के सिलसिले में अहदेदारों को मुतवज्जे किया। तो उसके बाद जो है साहब कई जो है हम गुजारिश दिए, एक जो है वाटर के बारे में जो है सफिशेंट वाटर कॉलोनी में नहीं आ रहे, वो बिल्कुल स्लो आ रहे हैं, वो भी एक आधा घंटे जो आ रहे हैं। उसके बाद रोड्स के बारे में हिसाब से गुजारिश दिए। तो उसके बाद जो है एक सीनियर सिटीजन रूम और जो है फर्स्ट फ्लोर ऑफ कम्युनिटी हॉल, वो कम्युनिटी हॉल इनकम्प्लीट है, सब बैलेंस वर्क है, वो भी जो है हम रिक्वेस्ट करें साहब से जो है। उसके बाद पार्क को साहब खुद पार्क जो है देख लिए, तो यहाँ के जो यहाँ भी एक पेंडिंग काम है और 2 फ्लोर जो है बनाना का है, वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है पेंडिंग रख दिए। तो ये पूरा कॉलेज जो है कॉलेज के बारे में जो है हम पूरा प्रॉब्लम जो है साहब को कंसल्ट करें, इमीडिएट रिस्पॉन्ड ऑन द स्पॉट ये ऑर्डर टू दी कंसर्न ऑफिशियल्स टू डू दी इमीडिएट वर्क एंड टू एस्टिमेट दी वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन रूम एंड आल्सो जो है बैलेंस वर्क फर्स्ट फ्लोर एंड आल्सो रोड्स जो है और वाटर के बारे में जो है साहब ये वी आर वेरी थैंकफुल टू और बलाल साहब जो है हमें आके जो है हमारे कॉलेज में जितने भी जो लोग हैं वो लोग जो साहब से बात करें, तो ये प्रॉमिस इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 2-3 मंथ्स बोल के जो है बोल दिया। मजलिसी कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में चलाए जा रहे दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी की 16वीं सालाना तकरीब का इनेकाद अमल में आया। ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड की बिजनेस डेवलपमेंट की सरबराह ज्योति किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इम्तियाजी कामयाब तलबा में तालीमी अवार्ड्स तकसीम किए। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस कंचनबाग के लेक्चर हॉल में मुनक़िदा इस तकरीब में एजाजी मेहमानों की हैसियत से सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर ए सांभा नायक, दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर GKN प्रसाद, दक्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर MM मलिक, ओवैसी हॉस्पिटल के चीफ सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां, दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस की प्रिंसिपल डॉक्टर ज़किया आबिद और दक्कन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर M रजा शाह ने शिरकत की। इस्लामिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन की जानिब से कॉलेज के क़याम के 10 साल मुकम्मल होने पर सेरोज़ा तकारीब मुनक्किद हुई। 21 दिसंबर को इख्तितामी तकरीब थी, जिसमें रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रताप रेड्डी, प्रोफेसर KS सुधीर रेड्डी, प्रोफेसर वेंकट रेड्डी, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ तालीमी और खेलकूद के अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। 2014 के इंतखाबात के लिए तैयार किए जाने वाले कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के मंशूर में तलबा की राय हासिल करने के मकसद से तैयार करदा फॉर्म की रस्म इजरा अंजाम दी गई। गांधी भवन में वजीर डी मानिक्यवर प्रसाद ने रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि NSUI UPA हुकूमत के कारनामों को बिलखुसूस तालीमी शोबे में किए गए इक़दामात को अवाम तक पहुँचाए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अवाम की नज़र में सेकुलर चेहरे हैं और इन चेहरों पर अवाम को भरोसा है। इस मौके पर NSUI के सदर राजीव रतन भी मौजूद थे। अंजुमन तरक्की व बक़ाए उर्दू की जानिब से सालार जंग म्यूजियम में उर्दू ज़रिए तालीम और हमारी जिम्मेदारियाँ के ज़रिए एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। इस सेमिनार में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के उर्दू असातिज़ा और स्कॉलर्स ने अपने मकाले पेश किए। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए प्रोफेसर S.A. शकूर, सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी ने कहा कि उर्दूदा हजरात को चाहिए कि वो अपनी औलाद को उर्दू में तालीम दिलवाएं और ख़ुद भी उर्दू की तरक्की के लिए कोशिशें करें। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू मीडियम स्कूल्स में तलबा की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, जो बात से अफसोस है। सेमिनार की सदारत प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी ने की। सदर सोसाइटी एजाज अली कुरैशी के शुक्रिया पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। आबिद रोड पर वाक़ मंदिर के अंदरूनी गेस्ट हाउस में आग लग गई, जिससे सारा फर्नीचर और AC वगैरह खाकिस्तर हो गए। मंदिर के जिम्मेदारों ने शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई है। ताहम पुलिस तहकीकात कर रही है।
महकमे इंसदाद रिश्वत की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ RTA चेक पोस्ट पर धावे किए गए। चित्तूर, शमशाबाद के पेद्दा शाहपुर, निजामाबाद के बोधन, अनंतपुर, नेल्लूर, श्रीकाकुलम और मशरकी गोदावरी में RTA चेक पोस्ट पर धावे करते हुए गैर महसूब रकम को जब्त कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बास चेक पोस्ट पर गैर मुतल्लिका अफराद भी रकम वसूल करते हुए पकड़े गए। ACB के डायरेक्टर जनरल AK खान ने बताया कि रियासत भर में 7 चेक पोस्ट पर धावे किए गए और इन धावों के दौरान 7 लाख रुपए जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि बदनवानियों में मुलविस महकमे ट्रांसपोर्ट के 4 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया गया है। AK खान ने कहा कि बदनवानियों में मुलविस मुलाजमीन पर नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शमशाबाद रोड पर हुए सड़क हादसे में 2 नौजवान जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 2 नौजवान कुमार और सीनू बाइक पर महबूब नगर जा रहे थे कि तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें पीछे से टक्कर दे दी। दोनों नौजवान शदीद जख्मी हो गए। एक के पैर की हड्डी भी टूट गई। कुमार और सीनू के पैरों पर काफी गहरे जख्म आए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सरसब्जी व शादाबी नए शहर तक महदूद, पुराना शहर नजरअंदाज। बलदिया के जनरल बॉडी इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स की बरहमी। शहर में सड़कों की खस्ता हालत पर कमिश्नर बल्दिया से कॉरपोरेटर्स की जवाब तलबी। कमिश्नर इजलास का बाइकआउट करके रवाना, पीर को दोबारा इजलास की तलबी। तेलंगाना मसवदा बिल नकायस और खामियों से पुर, रियासती वजीर मानिक्यवरा प्रसाद की तवज्जो दहानी। सरमायाकारी के लिए आंध्र प्रदेश मौजूद मुकाम, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का दावा। और किरण कुमार रेड्डी को चीफ मिनिस्टर का ओहदा, पागल के हाथ में पत्थर के मुमासिल, शंकर राव का इजहार ख्याल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।